Hello, everyone. Welcome to class one. And just before, you know, just now I explained about the keyword mentorship in Hindi, but I was not recording the class. So maybe we'll repeat very briefly in Hindi also, but let me first explain this in English. So there is a difference between teaching, training, and mentorship. In mentorship, we will help you design and achieve one goal, a goal which is realistic, a goal which is measurable, and a goal which is aligned with your expectations, right? You must be excited about one goal in your life. If you are not excited, you will not bring in the energy. You will not bring in your attention. Without your energy, without your attention, we cannot do any miracle. The miracle will happen within you, and you will do the miracle with yourself, right? So that is why we call it a trading mentorship program. Here, we will help you understand that what all is possible through options trading. What is the limitations? What is that historical data says? So once you have learned all these things in the first 3 months through live classes, you will realize that, okay, these are the possibilities, and this is something which is realistic also, and this is something which will happen month by month, week by week, and it will finally give me the sense of accomplishment in terms of whatever the energy I'm putting into, either in terms of learning, trading, giving your time, commitment, and everything. All right. So this is why we call it a mentorship, because we'll work with each one of you, because each one of you will have a different expectation as well. You might be wondering that how is it possible? Yes, around 50 to 60 people join in every batch, and it is possible to do that mentoring with all of them because we have technology in place, we have processes in place, and then once you have learned enough, you will also start cooperating with us in terms of getting it aligned with each other. So this is why we call it mentorship program. This is live class one of May batch, where the very first thing which I wanted to explain you is these three keywords. Apart from this, we are also going to learn about what exactly is financial market, what exactly is capital market, and then further what is derivative market. Derivative market means futures and option, where we are going to learn about option trading. हिंदी में मैंने पहले इसको रिपीट कर दिया था, फिर से रिपीट करता हूं। मेंटरशिप का मतलब ये होता है कि आपको सिखाने के बाद, पढ़ाने के बाद, स्किल डेवलप कराने के बाद, रियलिस्टिक, मेजरेबल और आपके खुद के गोल जो आपको एक्साइटेड रखें, वो बनाने में आपको हेल्प किया जाता है और उसे अचीव कराने में भी आपको हेल्प किया जाता है। दिस इज व्हाई वी कॉल इट ए मेंटरशिप। नाउ वी विल लर्न अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी मिसकंसेप्शन है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और उसे टाइम कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसे भी ट्रेडिंग कहते हैं, राइट? तो ट्रेडिंग उसे कहते हैं या नहीं कहते हैं, आप बेहतर समझ पाएंगे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि एक वेजिटेबल शॉप है, ठीक है, सब्जी की दुकान है। उस सब्जी की दुकान पे वो दुकानदार दिन के 50 किलो आलू बेच लेता है। सब्जी की दुकान है, बाकी चीजें भी बेचता है। 50 किलो, 50 या 100 किलो आलू बेच लेता है। 100 कस्टमर उसके यहाँ रोज आते हैं, ऑन एन एवरेज हाफ ए केजी से 1 केजी आलू खरीदते हैं। 100 केजी आलू वो बेच लेता है और बाकी सब्जियां भी बेचता है। तो 30 रुपए के हिसाब से दिन के 3,000 रुपए की सेल होती है उसकी। उस 3,000 रुपए में से उसे ये लगता है कि ठीक है, एक आइटम पे दिन का अगर 500 रुपए भी कमा लिया तो बहुत है। अब उसे वो 500 रुपए कमाने के लिए एक गणित बिठाना है कि पर केजी पे मुझे कितने चाहिए। 500 रुपए कमाने के लिए 20% के लगभग, मतलब पर केजी 6 से 7 रुपए मुझे बच जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा वेस्टेज होता है 10% का, मगर उसको एक एक पैटर्न पता है। अपनी दुकान खोलने से पहले किसी दूसरे दुकान पे उसने एक काम किया था।
और उसे ये पता है कि वो मंडी जाएगा, बड़े मंडी, वहां से आलू उठा के लाएगा और यहाँ पे बेचेगा। और जब भी वो मंडी जाएगा, उसे पता है मुझे आलू वहां पे 20 रुपए किलो मिल जाएगा। आलू का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि इसका प्राइस में बहुत कम वेरिएशन होता है। बाकी सब्जियों के प्राइस में बहुत वेरिएशन होती है। सब्जी बेची है मैंने 1.5 साल, ईडन बैग नाम से मेरा वेंचर था। ठीक है। तो ट्रेडिंग से बहुत ही, एक तो मैं फार्मर्स के लिए काम करना चाहता था, मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। तो 1.5 साल मैंने एक उस समय जब बिग बास्केट और ये सारी कंपनीज आ रही थी, उसी समय मैंने भी गुड़गांव में फार्मर्स के लिए, पहले तो फार्मर्स के साथ काम किया था, बाद में इधर हम लोग कंज्यूमर के लिए भी काम करने लगे थे। कुछ 12 शॉप्स थी, ऑनलाइन ऑर्डर्स आते थे। बहुत समानताएं दिखती थी मुझे मेरे ट्रेडिंग वर्ल्ड से और वेजिटेबल की प्राइसिंग प्रिडिक्ट करना या उसकी प्राइसिंग करना, इन सारी चीज़ों से लेकर के अल्टीमेट एजेंडा एग्रेरियन सेक्टर में काम करना, फार्मर्स के लिए हेल्प करना, ये सारी चीज़ें थी। तो उस वेजिटेबल वेंडर को पता है कि मैं जब भी मार्केट में जाऊंगा मंडी में तो मुझे 20 रुपए के लगभग आलू मिल जाएगा। मेरे इस मार्केट में, लोकल मार्केट में जहाँ पे मैंने दुकान खोल रखी है मेरे सोसाइटी में, यहाँ पे ऑन एन एवरेज 30 रुपए किलो आलू बिकता ही है। कोई इतना ज्यादा नहीं पूछता कस्टमर, उसे पता है आलू का प्राइस इतना ही है, वो 30 रुपए में लेके जाता है। 20 रुपए में मुझे वहां मिल रहा है, 5-10% की वेस्टेज हो रही है, 6-7 रुपए मुझे बच जा रहे हैं, आई एम हैप्पी अबाउट इट। ये ट्रेडिंग है। 2-4-5 दिन हो सकता है कि सप्लाई मंडी में ना आए, तो 2-4 रुपए आलू का प्राइस ऊपर चला जाए। हो सकता है कि वो 2-4 रुपए ऊपर चला भी जाए, मगर वो यहाँ पे एडजस्ट ना करे। कहाँ पे? अपने दुकान में। छोड़ो यार, अभी आज 4 रुपया महंगा भी आया, मगर क्यों कस्टमर खराब करना, 30 रुपए में बेचना है, 30 रुपए में ही बेचेंगे, एक दिन कम प्रॉफिट हो जाए। हो सकता है किसी दिन पूरी 1,000 किलो या 500 किलो की वो एक कंसाइनमेंट, मतलब जो भी है वो मंगा रहा हो कि चलो 4-5 दिन का एक ही दिन मंगा लेता हूँ, और वो थोड़ा वेस्ट हो जाए, थोड़ा नहीं पूरा ही वेस्ट हो जाए, गुम हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, बहुत सारा सामान आता है कहीं रह जाए, तो वो पूरा का पूरा लॉस भी हो सकता है। तो 2-4-5 दिन उसे पता है, 10 दिन साल में ऐसा होगा जब उसके हिसाब से चीजें नहीं होंगी, मगर 5 ही बार होगा, रोज रोज नहीं होगा। रोज रोज होगा तो वो बेचेगा ही नहीं। तो 90% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी उसके पास है कि मैं 20 रुपए खरीदूंगा, 1 रुपए का भाड़ा लगाऊंगा, 2 रुपए मेरा वेस्टेज का रहेगा, 6-7 रुपए मैं कमा लूंगा। ये मेरी ट्रेडिंग है। और यकीन मानिए मेरा, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं मुझे नहीं पता, जो लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, मगर इंडिया ट्रेडर्स का ही कंट्री है। हम लोगों ने एग्रेरियन इकोनॉमी से सीधे सर्विस इकोनॉमी में हम चले गए, मैन्युफैक्चरिंग करना हम भूल ही गए। तो सब चाइना से सामान मंगा मंगा के क्या किया है लोगों ने? ट्रेडिंग ही की है। अब हमारे यहाँ चीजें बनने लगी हैं कुछ कुछ, अच्छी बात है वो। बट 140 करोड़ का देश है, हर व्यक्ति के घर में 5,000 सामान पहुंचाना है। तो कितने सारे लोग होंगे जो इन चीजों की ट्रेड कर रहे हैं? बहुत सारे लोग होंगे। और वो सक्सेसफुली ट्रेड कर रहे हैं, तभी तो वो सस्टेन कर रहे हैं। जो आपके घर के दुकान, घर के नीचे आसपास 50 दुकानें हैं, वो सबके सब ट्रेडर हैं और सक्सेसफुल ट्रेडर। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? वही लोग जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने आ रहे हैं तो सेबी बता रही है कि 70 लाख लोग ट्रेड करने आ रहे हैं, और उसमें से 63-64 लाख लोग लॉस कर रहे हैं। क्यों लॉस कर रहे हैं? साइकोलॉजी तो पूरी ट्रेडिंग की है, सीख के आ रहे हैं ट्रेडिंग वो, अलग अलग चीजों की, फिर भी लॉस कर रहे हैं। इसलिए लॉस कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे ट्रेड कर ही नहीं रहे। यहाँ पे उन्हें पता ही नहीं है कि कौन से वो फैक्टर हैं जो जिस इंस्ट्रूमेंट को वो ट्रेड करने वाले हैं उसके प्राइस को इम्पैक्ट करेगा। एंड दैट इज द रीजन दे आर मेकिंग लॉसेस, राइट? तो ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन में डिफरेंस है। आपको स्पेक्यूलेट नहीं करना है। मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, बिल्कुल एंट्री एग्जिट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों के इस ऑप्शन ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में जो चीजें आपको सिखाने वाले हैं हम लोग, उसमें इंस्ट्रूमेंट चाहे जो भी हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, अभी तो करेंसी बंद हो गया मगर बहुत ही जल्द शुरू होगा वो, इंडेक्स में भी बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो,
आपको ट्रेडिंग साइड पे मार्केट को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वो फैक्टर सिखाए जाएंगे जो इन ऑप्शन के प्राइस को इम्पैक्ट करेंगे। आपको पहले से ही एक प्रोबेबिलिटी के साथ बताएंगे कि कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा, कौन सा ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होगा, प्रॉफिट में क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, लॉस में क्लोज होगा, लॉस में प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है उसकी। बायर सेलर कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं ऑप्शन का बायर बनूंगा या सेलर बनूंगा। आप देखेंगे प्राइसिंग। ट्रेडर का यही काम है। जहां से सस्ता मिलता है वहां उठाना है, जहां पे महंगा बिकता है वहां बेच देना है। अगर कोई चीज पहले से भी महंगी हो रखी है और उसका प्राइस नीचे जा रहा है तो शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है। शॉर्ट सेलिंग मतलब जो चीज हमारे पास नहीं है उसे भी बेच देने को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, राइट। तो ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि ट्रेडिंग का क्या मतलब है और वो कैसे अलाइंड होगा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में अगले 6 महीने में? आई हैव ओपन द चैट। एनी क्वेश्चन? अब ऑप्शन सीखेंगे हम लोग, ठीक है। और ऑप्शन सीखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, राइट। 8:33 हो गए हैं और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। क्या है रियल लाइफ एग्जांपल? ये है मार्केट। निफ्टी है 22,300 पे, थोड़ी गिरी है आज। और टॉप पे है ना? किसी को डर लग रहा है कि मेरी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मार्केट बहुत ऊपर है, पता नहीं क्या होगा इलेक्शन के बाद? बहुत बुलिश हैं लोग कि अच्छा ही होगा, मगर मार्केट, इलेक्शंस, डेमोक्रेसी, हर चीज़ सरप्राइज करती है हमें, राइट। कोई सरप्राइज हुआ तो क्या होगा? 30% करेक्शन को कुछ लोग हेल्दी करेक्शन बोलते हैं कि कोई बड़ी बात थोड़ी है। अभी 4 साल पहले चली गई थी ये कहाँ पे? 8,000 पे, और वहां से 4 साल बाद पहुंच गई है 22,000 पे, करेक्ट। तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 22,000 से अगर 30% करेक्शन हो जाए और 16,000 पे मार्केट चला है तो पुलिस आ जाएगी? नहीं ना। कुछ भी हो सकता है। मार्केट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, यकीन मानिए। ये 5 साल का ग्राफ है, इसलिए ऐसे फ्लैटन दिख रहा है, मतलब इतना उछल कूद नहीं दिख रहा। 5 दिन का देखेंगे तो देखिए कितना उछल कूद दिखाएगा, राइट। तो हो सकता है कि मार्केट गिर जाए, 16,000 आ जाए, 17,000 आ जाए, 15,000 आ जाए, फिर आ जाएगा 22,000। क्या फर्क पड़ता है? 24,000 भी जाएगा, 30,000 भी जाएगा, 50,000 भी जाएगा। 10 साल बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, जाएगा। लेकिन उसके पहले हो सकता है 16,000 चला जाए या 15,000 चला जाए, और आपने अभी अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने उठा के 10 लाख रुपए डाल दिया है मार्केट में, बिल्कुल आखिरी में आके। क्यों? क्योंकि पहुंचते पहुंचते बात पहुंच गई, और ऐसे पहुंचाई गई कि भाई तुम तो मिस कर गए, अब और मिस मत करना। हम्म। एक एक कहावत थी पहले कि जब वैसे नाई या बार्बर के उसमें नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ बहुत अच्छा प्रोफेशन है वो, और अभी तो वो लोग भी लाखों कमाते हैं उस प्रोफेशन में, आप अच्छे हेयर ड्रेसर हैं तो। बट एक कहावत थी कि अगर आपका बाल काटने वाला भी आपको स्टॉक की नसीहत देना शुरू कर दे तो आप समझ लेना कि स्टॉक मार्केट में भूचाल आने वाला है। कुछ वैसा दिखता है मुझे, और मेरे साथ तो हुआ, ठीक है। तो एनीवे, लेट्स से कि किसी को, सबको नहीं, कुछ लोगों को डर लग रहा हो, मैं उनमें से एक हूं, और मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, लेकिन मैं उसे बेचना नहीं चाहता। मुझे ये है कि इलेक्शन आने वाले हैं,
इलेक्शंस 2024 डेट्स, सब रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग ताकि आप इसको थोड़ा रिलेट कर सकें, है ना। तो ये 1 जून तक शायद है इलेक्शन 2024 रिजल्ट डेट। क्या पाकिस्तान में भी इलेक्शन हो रहे हैं क्या? जून, जून में आ जाएगा रिजल्ट। हाँ, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। और हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे डर था कि आ, मतलब जनरली मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद है। तो एक बहुत अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट अगर आती है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, मार्केट के लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती है, जैसे गवर्नमेंट बनती है, एग्जिस्टिंग पार्टी की ही बनती है, मगर उतने मेजोरिटी के साथ नहीं बनती है जो एक्सपेक्टेशन है अभी, वैसा कुछ वहां से 10-20% ऊपर नीचे होता है, तो मार्केट हो सकता है नीचे भी आ जाए। एनीवे अभी जो इंडिकेटर्स हैं जीडीपी के साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन की, वो भी बहुत हाई है, तो मार्केट गिर सकता है, राइट। और मुझे डर है कि मेरा 10 लाख का जो पोर्टफोलियो अभी है या 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो उस समय गिर करके, अगर 30% मार्केट गिरा तो मेरा 10 लाख गिर करके 7 लाख रह जाएगा। और ये सब 2 महीने में हो जाएगा, और तब मैं बहुत पछताऊंगा। मुझे हो सकता है उस पैसे की जरूरत नहीं है, हाइपोथेटिकली वो गिरे, बाद में ऊपर भी आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें हो सकता है कि जून जुलाई में कुछ इंपॉर्टेंट काम हो और वो इसी स्टॉक के इन्वेस्टमेंट के भरोसे बैठे हैं। और उस समय जब वो बेचने जाएंगे तो लेट्स से 10 लाख की जगह 7 ही लाख मिलेगा, और उनके जो प्लान्स हैं वो सारे खराब हो जाएंगे। मार्केट का गिरना उनके लिए एक रिस्क है। तो जहां पे भी रिस्क है, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें इंश्योरेंसेस की जरूरत पड़ती है। ये सब फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। तो ऑप्शन समझते हैं उसी हिसाब से, ठीक है, कि ऑप्शन क्यों बनाया गया है, और एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो जो कहानी सुनाई मैंने आपको, वो बात सबको समझ में आ गई? चैट में एक बार मुझे बताइए कि इलेक्शंस हैं, रिजल्ट आएगा, हो सकता है मार्केट क्रैश करे, किसी का पोर्टफोलियो हो 10 लाख का, 10-20% नीचे जाए, तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या बेच दे सारा कुछ? इस तरीके के दिमाग में ख्याल आ रहे हैं। और इन सब का आंसर अगर ऑप्शन देता है, तो क्या उस तरीके से ऑप्शन को जानना ज्यादा अच्छा नहीं है? ठीक है, मैं चैट को थोड़ा ऑफ कर रहा हूं और दो सिनेरियो बता रहा हूं आपको। तो एक सिनेरियो ये है कि ऑप्शन एज ए प्रोडक्ट को आपको ऐसे समझाया जाए कि इसकी उपयोगिता क्या है। बनाई तो हम ही लोगों ने है ना, मतलब हमने कॉलेज बनाए, हमने स्कूल बनाए, हमने एटम बॉम्ब बनाए, रिवॉल्वर बनाए, दवाइयां बनाई, रोड बनाए, रेल बनाए, हवाई जहाज बनाए, क्या नहीं बनाया, सब कुछ बनाया, हम ही लोगों ने बनाया। और फिर हमने ऑप्शन भी बना दिया। तो हर वो चीज जो मैंने गिनाई आपको, उन सबकी उपयोगिता है, यूजफुलनेस है, इसीलिए तो बनाई। तो ऑप्शन का भी यूजफुलनेस होगा, वो भी जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है। तो एक सिनेरियो ये है कि हम ऐसे समझना शुरू करें, हवाई जहाज की भी ट्रेडिंग होती है, बसेस की भी ट्रेडिंग होती है, बाइक्स की भी ट्रेडिंग होती है। और कब ट्रेड कर पाएंगे आप बाइक को? अच्छा, बजाज का शोरूम लेना है या होंडा का शोरूम लेना है, मारुति का लेना है कि हुंडई का लेना है, ये भी तो एज ए ट्रेडर आप तभी डिसाइड करेंगे ना जब आप कार को अच्छा समझते हैं, उसकी उपयोगिता समझते हैं, उसकी उपयोगिता के साथ साथ उसके फीचर समझते हैं। तो एक तो तरीका ये हुआ। और दूसरा तरीका ये है कि ये है 50 रुपए का ऑप्शन, बोलते हैं इसे कॉल। मार्केट अगर ऊपर गई तो हो सकता है ये 100 भी हो जाए, 200 भी हो जाए, 500 भी हो जाए, और तो और जीरो से हीरो हो जाए। मतलब 10 रुपए वाला ऑप्शन है और 1,000 हो जाए, और आप बन जाएं लखपति, करोड़पति। दूसरा वाला सिनेरियो ये है। किस तरीके से ऑप्शन को समझना चाहेंगे आप?
पहले तरीके से या दूसरे तरीके से। पहला तरीका है कि जिस प्रोडक्ट को हम ट्रेड करने वाले हैं, ट्रेडर बनने वाले हैं अगले 10 साल 20 साल के लिए, उसकी उपयोगिता समझी जाए। या कोई तो एक सोशल मीडिया पे रील आया है जहां पे वो बात कर रहे हैं 2 दिन में ट्रेडर बनाऊंगा और जीरो से हीरो आप ऐसे बनेंगे, या जीरो से हीरो वाला ट्रेड आपको बताऊंगा, BTST बताऊंगा, इंट्राडे बताऊंगा। इस ऑप्शन की शुरुआत कैसे करना आपको लगता है उचित है? 1 तो 1 वोट कीजिए, 2 तो 2 वोट कीजिए एक बार चैट में। बिकॉज हम दोनों की अलाइनमेंट भी तो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं अपनी तरफ से डिसाइड करके बैठा हूं कि आपको कैसे सिखाना है मुझे। राइट, सो अभी तक सारे लोगों ने 1 किया है, रवि ने 2 वोट किया है। अभी मैं रवि से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास ड्रॉप कर लें यहीं पे और रिफंड के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है? यही सफा, बोथ डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। चलो, ये थोड़ा रैशनल आंसर है, तो मैं अनिल को इनवाइट करना चाहूंगा कि कौन से सिचुएशन में वो। अनिल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बताइए किस सिचुएशन में आप ये चाहेंगे करना, सीख सर सब। नॉर्मली तो ऑप्शन वन ऑब्वियसली अच्छा है, सेफ है राइट। और लॉन्ग टर्म कर सकते हैं अपन। बट हम्म। समटाइम्स जैसे बड़े इवेंट्स हैं, हम्म। जैसे इलेक्शन वाला इवेंट है, बजट वाला इवेंट है, हाँ। उसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस और रिस्क लेके जीरो हीरो भी खेल सकते हैं। ओके, आई गो देयर, आई आंसर दैट। इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया, बिकॉज मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत समझा दिया मैंने। ठीक है, फिर से बताता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम सीखने की शुरुआत कैसे करें, ऐसे कि जो चीज ट्रेड करने वाले हैं उसकी उपयोगिता समझ के, उसका यूजफुलनेस समझ के, उसके फीचर समझ के। या ऐसे कि उसके थ्रू जो लालच या डर दिखाया गया है हमें, उस लालच और डर को बेस बनाकर सीखने की शुरुआत करेंगे। क्या आप, वो कंप्लीटली आपकी मर्जी है। लेकिन करेंगे भी तो तभी ना सही जब सब कुछ सीख लेंगे। आप बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा रिस्क भी लेना है, कॉशियस भी रहना है, और जीरो टू हीरो का ट्रेड भी लेना है। ये दो, आज अभी ये स्टेटमेंट आप बोल रहे हो, बट 2 महीने बाद ये स्टेटमेंट आप नहीं बोल पाओगे। बिकॉज दोनों अपने आप में कितना कॉन्फ्लिक्टिंग है, आप इस पे विचार करो एक बार। आप ये बोल रहे हो मैं कॉशियस रहना चाहता हूं, आप पता है क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो मैं तलवार की धार पे चलना चाहता हूं, सेफ तरीके से। ये बोलना चाहते हो आप। करने वाली जो बात है, सीखने की बात जबकि मैं कर रहा हूं, सीखने की बात, सीखने की शुरुआत किसी भी चीज की हमें नंबर 1 तरीके से ही करनी चाहिए। इस पे मेरा बिल्कुल स्ट्रांग ओपिनियन है। लालच, उससे जो जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड जो डर जुड़ा हुआ है, उन सबको जब तक निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक आपके और उस कॉन्सेप्ट के बीच में एक दीवार बनी रहेगी। एक डर, डर और लालच दोनों आपको फोकस नहीं करने देंगे। तो बहुत जरूरी है कि उस तरीके की जितनी भी थेरीज हैं, जितने भी रील्स आपके पास आते हैं, उन सबको डंप करना शुरू कर दें। बिल्कुल डंप करना शुरू कर दें, ब्लॉक करना शुरू कर दें। आई डोंट वांट टू सी दिस काइंड ऑफ एड्स, आई डोंट वांट टू सी दिस काइंड ऑफ कंटेंट। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आप यकीन मानिए, जीरो टू हीरो जैसा। ठीक है, एक आध बार हो जाए किसी के लाइफ में और वो स्क्रीनशॉट डाल दे, तो आप मत ऐसा समझिए आपके साथ भी होगा। लॉटरी लगती है ना, 1 लाख लोग खरीदते हैं 10-10 रुपए की, या 100-100 रुपए की, 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। वो लॉटरी वाले को क्या फर्क पड़ता है? 1 करोड़ कलेक्ट हो गया, एक आदमी को एक 50 लाख का इनाम दे दिया। बट आपकी क्या प्रोबेबिलिटी बनी उसमें जीतने की? 0.001%, पता नहीं, और भी कम। 1 लाख में एक मतलब 5 सुनना। ठीक है, तो वैसा कुछ भी नहीं होता कि आपको तलवार पे भी चलना है और आप बोल रहे हो कि सेफ तरीके से चलना है। कोई जादूगिरी
या करतब कला सीखने नहीं आए हैं आप एक स्किल डेवलप करने आए हैं। बहुत ही क्लियर तरीके से वो स्किल आपको डेवलप करनी है, जानना ही है उसके बारे में, उस मार्केट के बारे में जहां वो ऑपरेट हो रहा है, कौन और वो लोग हैं जो उसमें ऑपरेट कर रहे हैं, उनके क्या बिहेवियर है, और वो सारी चीजें, रादर देन कि मेरा लॉस हो रखा है, पता नहीं दोबारा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। उस साइकोलॉजी से बाहर निकल करके मेरा उम्मीद है कि मैं बहुत सारे करोड़ रुपए बना लूंगा, इस लालच को भी साइड में रख करके। बनेंगे, बनेंगे, किसके बनेंगे? जो मेहनत करेगा, जो सबसे अच्छा सीखेगा, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। बिल्कुल कुछ वैसा ही है कि स्कूल होता था, क्लासरूम होते थे, 50 बच्चे होते थे, कुछ आईआईटी चले गए, कुछ आरईसी चले गए, कुछ नहीं गए, लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए, मगर फिर भी उन्होंने लाइफ में जब उनको लगा कि अब यहाँ से मैं अच्छा करना चाहता हूँ, वो अच्छा करना शुरू कर देंगे। तो सीखना ही है, और आपने वो डिसीजन ऑलरेडी ले ही लिया है कि सीखने का डिसीजन लिया, तभी तो आप यहाँ पे हैं। टिप का डिसीजन अगर आपने लिया होता जीरो टू हीरो वाला, तो उन्हीं के पास जाते ना। सो नो डाउट वी ऑल आर ऑन सेम पेज। थोड़ा बहुत अगर मिसअलाइनमेंट है तो वो भी धीरे धीरे हम लोग खत्म कर देंगे, और वो मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कि अगर आप कहीं पे कुछ गलत सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसे वहीं पे रिकरेक्ट करना, ताकि आपका थॉट प्रोसेस सही हो जाए। तो अभी जीरो टू हीरो, ऑप्शन बाइंग, या रातों रात अमीर बनने का जो कुछ भी दिमाग में थॉट है, वो सबको साइड में रख करके सिर्फ और सिर्फ सीखने की ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, मूविंग टू ऑप्शंस। और जो सिनेरियो मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा कुछ इलेक्शन में होने वाला है, ऐसे कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या होगा, तो जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता ऑप्शन का, उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट सिंपल ही रहेगा, बट थोड़ी सी इसकी उपयोगिता समझ लेते हैं। तो समझने के लिए जो एग्जांपल लिया मैंने, वो इलेक्शन का लिया, रिजल्ट का लिया। आपने ये समझा कि हाँ, मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए, मार्केट सरप्राइज कर सकता है अगर इलेक्शन में इंडिया की पब्लिक ने गवर्नमेंट को सरप्राइज किया एग्जिस्टिंग, राइट। तो ये सब चीज़ों का डर है कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को होगा। आप में से कितने लोगों को है पता नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी अर्ली स्टेज ऑफ अपने इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करियर में। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, तो दूसरा कॉन्सेप्ट एक समझेंगे हम लोग पोर्टफोलियो का। ठीक है, तो मान लो मेरी इन्वेस्टमेंट तो है, कितने की है? 10 लाख रुपए की, 10 के आसपास की। ठीक है, कैसे है? तो मुझे बहुत नहीं आता मार्केट, मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा आता है। क्या आता है मुझे? मुझे एक तो ये आता है कि ये एनएसयू की वेबसाइट है, यहाँ पे कंपनीज लिस्ट होती हैं, और लिस्ट होती है मतलब जब वो प्राइवेट लिमिटेड रहती हैं, उसके बाद वो पैसे रेज करती है मार्केट से, पब्लिक कंपनी बन जाती है, शेयर इशू कर देती है। तो पहली बार उन्हें किसी न किसी एक्सचेंज में खुद को लिस्ट करना होता है, तो वो यहाँ पे लिस्ट कर देती है। फिर मुझे ये पता है कि 2-3 हजार कंपनीज हैं यहाँ पे लिस्टेड, सब मिला के 6,500-7,000 कंपनी एनएससी और बीएससी को मिला करके लिस्ट हुई है इंडिया में, और उन्हीं के शेयर्स हम खरीद सकते हैं। अब ये एक बड़ी समस्या है, 7,000 कंपनियों में से किसे खरीदा जाए? तो मुझे तो इतना आता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ उसी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ जो कंपनीज बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा आता नहीं है। तो या तो किसी ने मुझे बता दिया कि ठीक है, एसेट क्लासेस हैं 3। एक है एसेट क्लास आपका रियल एस्टेट, सब घर खरीदते हैं, मेरे दादाजी ने बनाया था, फिर मेरे पिताजी ने बनाया, मैंने भी बनाया, अब चाहे जितने भी बनाए हो, मेरी बेटी भी बनाएगी। मोस्ट प्रोबेबली मेरे साथ नहीं रहेगी, या रहेगी पता नहीं, जहाँ जाएगी हो सकता है एक घर वो भी अपना बनाए। अपना वेल्थ का एक अच्छा खासा हिस्सा लोग घर बनाने में, रियल एस्टेट एक्वायर करने में लगा देते हैं, एक वो एसेट क्लास है। दूसरा फिक्स्ड इनकम जैसे हैं, एफडी करा लिया, बॉन्ड खरीद लिए, इस तरीके से जो फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी देते हैं, रिस्क उसमें कम होता है। और तीसरा ये है कि गोल्ड हमारा कल्चरल एक है कि शादी में खरीदते हैं, और इस तरीके से इंडिया के पास तो खैर बहुत बड़ा गोल्ड का भंडार है। जबकि हम लोग, भंडार नहीं है मतलब, हम लोग गोल्ड खदान से नहीं निकालते, इंपोर्ट बहुत सारा करते हैं, हमारा बहुत सारा फॉरेन रिजर्व भी उसमें से चला जाता है उसके कारण। बट यस, ये 3 एसेट क्लास हैं। और फिर चौथा ये है कि जिन कंपनियों के हम सामान खरीद रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, उन्हीं कंपनियों के हिस्सेदार बन जाएं, उनके शेयर्स खरीद। तो मैंने अप्रोच बहुत बेसिक सा ये लगाया कि या तो उन कंपनियों के शेयर्स ले लूं
जिनका मैं सामान खरीदता हूँ। मारुति की कार खरीदता हूँ तो मारुति की शेयर ले लूँ, होंडा का बाइक चलाता हूँ तो होंडा के शेयर्स ले लूँ, सिप्ला की दवाई खाता हूँ तो सिप्ला के शेयर्स ले लूँ, ब्रिटानिया के बिस्किट खाता हूँ तो ब्रिटानिया का भी बिस्किट, ब्रिटानिया के भी शेयर्स ले लूँ। राइट, रिलायंस का जियो यूज करता हूँ, रिलायंस भी ले लूँ। राइट, इस तरीके से। और वोडाफोन का सर्विस यूज करता था, उसका सर्विस थोड़ा खराब हो रहा था, उससे मैं शिफ्ट हो गया एयरटेल पे, एक काम किया, वोडाफोन के शेयर बेच दिए और एयरटेल के शेयर खरीद। ऐसे कुछ बिहेवियरल पैटर्न पे या तो मैं अपने शेयर्स खरीदता हूँ। ट्रेडिंग की क्लास है, बट यकीन मानिए मेरा, ये जो फिलॉसफी मैंने अभी इन्वेस्टिंग की आपको बताई है, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे, बहुत सारे फंड मैनेजर को बीट कर देंगे आप। दूसरी फिलॉसफी, कौन एक एक कंपनी के बारे में सोचे। एसेट क्लास तो यही है ना स्टॉक मार्केट, जो कभी कितनी थी, 8,000 तक गई, 24,000 आ गई, सीधे सीधे निफ्टी ही ले लिया होता, मतलब निफ्टी कैसे ले सकते हैं भाई, ईटीएफ आता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो ले लिया होता। 12% से निफ्टी अगर ऊपर जा रही है तो 8% से तो बेहतर ही है एफडी के 7% से। एफडी में अगर मैं रख रहा हूँ 5 लाख रुपए, तो चलो 2 लाख रुपए का निफ्टी ईटीएफ के साथ मैंने स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर लिया। फटेगा, डूबेगा, सबका डूबेगा, मेरा डूबेगा, वेल्थ भी तो बड़ा रिलेटिव ही है ना। दुख तो तभी होता है ना, बगल वाले के यहाँ मर्सिडीज खड़ी हो और अपने यहाँ पे 800, सबके घर में 800 जब लगी होती है तो अच्छा ही लगता है, कुछ उसमें बुरा नहीं लगता। शेयर मार्केट में तो वही लोग आ रहे हैं ना जिनके जीने की मैक्सिमम समस्याएं खत्म हो गई हैं। रहना है, खाना अच्छा मिल रहा है, कपड़े हैं, एजुकेशन है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जूम पे क्लास ले रहे हैं, तभी तो स्टॉक मार्केट में आए हैं। तो वो समस्याएं तो खत्म है। तो अब कौन सी समस्या है, अब समस्या वही है कि जो है वो कम ना पड़ जाए फ्यूचर में, तो इन्वेस्ट करें। राइट, कम ना पड़ जाए फ्यूचर में, कम ना पड़ जाए बुढ़ापे में, कम ना पड़ जाए बच्चों के लिए, और कम ना पड़ जाए सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो जब सबका गिरेगा तो मेरा भी गिर जाएगा। तो ये एक फिलॉसफी के साथ सीधे सीधे ईटीएफ में भी लगा के रख सकते हैं। ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वहां पे भी लेते जाना है। तो दूसरा अप्रोच मेरा ये हो सकता है। तीसरा अप्रोच मेरा ये हो सकता है कि नहीं, इतना थोड़ी है, ये सब तो कुंदन ने मुझे बता ही दिया, थोड़ा दिमाग में और लगा लूंगा। क्या लगाऊंगा, निफ्टी 50 स्टॉक एनएसई ने खुद ही ढूंढ दिए हैं, और उन्होंने ये बताया है कि भाई देखो, हर कंपनी के ऊपर नीचे होने से, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ जो बड़ी कंपनियां हैं इस देश की, जो बहुत सारा बिजनेस करती हैं, अभी कुछ रिपोर्ट भी आई थी ना कि टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट होल्ड 50% ऑफ द वेल्थ ऑफ दिस कंट्री, समथिंग लाइक दैट। वो रिपोर्ट थोड़ी उस तरीके की है कि बहुत सारा पूंजी कुछ ही हाथों में जा रहा है और वहां रिजर्व हो जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ा 6,500 कंपनियों का जो कुनबा है, उस कुनबे में से ये 50 दमदार कंपनियां निकाल के मैं आपको दे रहा हूं, इनको मैं रखूंगा और इनसे मैं इंडेक्स बनाऊंगा, जिन इंडेक्स की मदद से मैं आपको बता पाऊंगा कि ओवरऑल हमारे कंट्री का स्टॉक मार्केट ऊपर गया है या नीचे गया है। और उनमें से कुछ ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे आएंगे, उन सब का मैं कंट्रीब्यूशन डालूंगा। किसी का कंट्रीब्यूशन 7% रहेगा, किसी का 2% रहेगा, उस पूरे 100 में। मतलब एक 100 का इंडेक्स है, उस 100 में एक कंपनी है जिसका वेटेज 5% डाल दिया है, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है। तो कोई छोटी कंपनी उसका वेटेज 2% डाला है, कुछ मीडियम कंपनी है उसका वेटेज 3% डाला। तो अलग अलग वेटेज के साथ कितना परसेंटेज ऊपर गए नीचे गए वो सब मिला के मैं एक इंडेक्स बना दूं। तो फिर मुझे लगा कि ओके फाइन, एक काम करता हूं कि कहीं पे ये भी पढ़ा था, डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। सारे एक ही, अपने पैसे एक ही शेयर में ना डाल दें, थोड़ा बराबर बराबर करके डाल दें। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह तो सीख सकते हैं हम, और क्या होना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो का बीटा और बाकी सारी चीज़ें वो निकाल सकते हैं, कितना वेटेज हमें रखना है वो देख सकते हैं। 15 अलग अलग सेक्टर से उनमें से कौन से 6-7 सेक्टर्स में रहना है ये भी थोड़ा डिटेल में सीख सकते हैं। और ये सब आपको मैंने एक कोर्स दिया हुआ है आपके पैकेज में। आपको जरूर, अगर नहीं आती है ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़, थोड़ा तो मैं रिपीट आज कर रहा हूँ,
मगर आप भी ये देखिए 5 कोर्सेज जो मैंने आपको असाइन किए हैं, इनमें हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसी चीज़ें भी मैंने बताई हैं। दोबारा भी इस कोर्स को री रिकॉर्ड करने की सोच रहा हूँ मैं, 4 साल हो गए हैं इसे, मगर ये 990 रुपये में अब पता नहीं क्यों एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इतनी हो गई है कि मैं इसे प्रमोट नहीं कर पा रहा हूँ, और इसकी प्राइस भी नहीं बढ़ाना चाहता मैं। ये फालतू की बात हो गई। आते हैं टॉपिक पे। तो एक तरीका और है, बट सीखिएगा, सीखिएगा, वीडियोस देखिएगा। थियरी पुरानी थोड़ी होती है, एग्जाम्पल पुराने हो जाते हैं। थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते मैं, मुझे लगता है कि अब मैं और बेटर प्रेजेंट कर सकता हूँ इन कोर्सेज को, इसलिए री रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। देखते हैं। तो एक तरीका और था कि ओके, मैं इन्हीं 50 स्टॉक्स में रह करके इन्वेस्ट करूंगा। इनमें से 10 स्टॉक या 8 स्टॉक उठाऊंगा और 1-1 लाख रुपए के खरीद लूंगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको। बहुत एक्यूरेट है कि नहीं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से, ये नहीं बता रहा, बट एक सिंप्लीफाइड अप्रोच है। और यकीन मानिए मेरा फिर से, कि इस अप्रोच से भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे, 3 अप्रोचेस बताए मैंने आपको। एक, आप अपने यूज और बिहेवियर के हिसाब से स्टॉक्स खरीदें। दूसरा, ईटीएफ में बने रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहें। तीसरा ये कि चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम जो फिल्टर्ड, एनएससी ने खुद इतनी मेहनत करके कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक किया, उनका वॉल्यूम चेक किया, फलाना ढिंगाना सब कुछ किया, उनकी भी इज्जत दांव पे लगी रहती है, यकीन मानिए इस बात पे। अगर इनमें से एक कंपनी घटिया निकलती है, जिनके अंदर 50 स्कैम बाहर निकल के आते हैं, एनएससी की भी इज्जत लुटती है, उसमें जाती है। अगर सत्यम कभी निफ्टी 50 का हिस्सा था और बाद में उसे निकाला गया, तो इसमें एनएससी के ऊपर भी एक दाग है। अगर यूनिटेक और जेपी एसोसिएट को टाइम रहते इन्होंने इसमें से बाहर नहीं किया, तो इनकी भी इनफिशियंसी है उसमें। आखिरी तक अगर वेट किया तो शायद यस बैंक भी निफ्टी 50 का हिस्सा था। तो पिछले 10 साल 20 साल में आप देखेंगे तो 8-10 एग्जाम्पल आपको वैसे वाले भी मिल जाएंगे, क्योंकि वो एरर हर कोई कर सकता है। एनएससी चलाने वाले भी तो ह्यूमंस ही हैं। इनके नज़र से भी बहुत सारी चीज़ें बचा करके कुछ फ्रॉड, लोग फ्रॉड कर जाते हैं, राइट। अदरवाइज इनकी पूरी कोशिश ये होती है कि अच्छी बड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिनकी अच्छी हो, प्रॉफिटेबल कंपनी हो, वाइडली स्प्रेड हो, कॉमनली हेल्ड हो, ऐसी कंपनियों को लेकर के आए। लिक्विडिटी की इशू ना हो, जब जाए खरीदने तो मिल जाए, जब बेचने जाए तो बिक जाए। ये सारे पैरामीटर्स के साथ निफ्टी 50 50 स्टॉक आपको देती है, और आप सोचते हो कि चलो इसमें ही रहते हैं और एक पोर्टफोलियो बना रहते हैं। तो कुंदन किशोर भी बस इतना ही जानता है, और उस हिसाब से 10 शेयर्स 1-1 लाख रुपए की खरीद लेता है। मगर थोड़ा चिंतित है कि पता नहीं क्या होने वाला है, और मार्केट इतना टॉप पे है। तो कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं कुंदन किशोर के, ये कुंदन किशोर नहीं आप बताओगे। बताइए निफ्टी 50 के कौन से स्टॉक्स आपके हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो में होने चाहिए थे 1-1 लाख के। 10 स्टॉक्स बताइए चैट में। इन्फी, ओके। अब आईटी वाला दूसरा नहीं बोलेगा कोई, आईटी का एक हो गया। आईटीसी, मारुति, टाटा स्टील, रिलायंस, एचडीएफसी, टाइटन। ओके, हो गया। अब मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। मैंने इसलिए इसको सॉर्ट आउट किया क्योंकि टाटा पावर नहीं है इसमें, जिस किसी ने भी टाटा पावर लिखा है। रामकृष्ण रॉय टाटा पावर नहीं है, टाटा मोटर्स है। तो मैंने एक लिख दिया, टाटा मोटर्स। अब शेयर्स के नाम आप लोगों से क्यों लिए मैंने? शेयर्स के नाम आप लोगों से इसलिए लिए क्योंकि कल के डेट में कोई ये ना बोले कि मैंने कोई पोर्टफोलियो दिया था अपना, वो फिर एडवाइजरी कैटेगरी में आ जाएगा। टाटा मोटर्स है, पीएनबी है। पीएनबी तो देखिए नहीं है इसमें, है ना। पीएनबी नहीं है निफ्टी 50 में। एचयूएल है, एचडीएफसी बैंक है। टाटा आपने लिखा है दिलीप, टाटा कौन सा? 140 कंपनी है इसमें। मैं टाटा स्टील लिख दूं?
टाटा स्टील, एच डी एफ सी ऊपर में टाटा स्टील किसी ने लिखा भी था, इसलिए लिखा है मैंने। रिलायंस, कोलपाल भी नहीं होना चाहिए, कोलपाल नहीं है वो, फार्मा सेक्टर की थोड़ी रिलेटिवली छोटी कंपनी है। रिलायंस है, मारुति दिया है किसी ने, आईटीसी दिया है। हो गए क्या 10? 1 2 3 4 5 6 7 8, एल है और इन्फी है। हो गया हमारा पोर्टफोलियो। बताइए, आप सबने मिलके इतना अच्छा पोर्टफोलियो बनवा दिया मेरा। मैंने नहीं बनाया, देखो आप लोगों ने बनाया है। अभी क्लास में रिकॉर्ड भी हो रहा है। अब देखिएगा कि बाकी फंड मैनेजर जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो इनमें से कितने शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और जिसके बदले वो 1.5% चार्ज करते हैं साल का। एनीवे, very happy that you gave these names and looks like a very balanced portfolio. At least this is the comment I can give, right? और ये सब मैंने कितने का लिया? 1-1 लाख रुपए का लिया। अब ये मेरे पास हो गया 10 लाख का एक पोर्टफोलियो। एक एक स्टॉक आप लोग और बता दीजिए, मैं देख लेता हूँ इसमें से। 10 क्यों, 11 ले लेते हैं। बट नहीं, 10 ही हैं। 10 ही दिए हैं आपने यूनिक। जो निफ्टी 50 के 10 यूनिक दिए हैं आप लोगों ने, जहां पे मैंने चैट ऑफ किया। तो चलो 10 लाख का ही पोर्टफोलियो, दिस इज माई पोर्टफोलियो। अब क्या चिंता है? अब चिंता ये है कि 30% जिसे बहुत सारे स्टॉक मार्केट पंडित हेल्दी करेक्शन बोलते हैं टीवी पे आके, जब मार्केट गिरेगी तो दिस इज ए हेल्दी करेक्शन। मार्केट को एक नई दिशा मिलेगी, इट इज गुड। तब तक किसी की लुटिया डूब चुकी होगी और ये पोर्टफोलियो कहाँ आ जाएगा? 7 लाख पे। अब जो अभी अभी घुसा है और 3 लाख उसका डूब जाए, वो गाली ही देगा ना स्टॉक मार्केट को। और ऊपर से किसी ने उसको अभी ऑप्शन सिखा दिया था, वो अलग, उधर गवाए, पोर्टफोलियो भी गया। तो क्यों ना इसे सट्टा बाजार बोला जाएगा, बोला ही जाएगा। तो यहाँ पे सट्टा बाजार नहीं है ये। और अगर इस तरीके का डर है मुझे, तो डर तो ये भी है कि मेरा ये फोन टूट जाएगा, इतना महंगा आता है, खरीदना पड़ता है। क्यों खरीदना पड़ता है पता नहीं, बट महंगे ही लैपटॉप और मोबाइल खरीदने पड़ते हैं आपको टीचिंग प्रोफेशन में या सोशल मीडिया में आप रहते हो तो इसका भी इंश्योरेंस 16 हजार का है। अभी रिन्यू होने वाला था, आज कॉल आया था, मैंने बोला मैं तो नहीं करवा रहा। टर्म पॉलिसी भी 16 हजार की है, 1 करोड़ वाली। मतलब 1 करोड़ का 16 हजार है, करवा ज्यादा कर रखा हूँ, वो देते हुए पिंच नहीं होता। ओके। तो ये भी 10 लाख 7 लाख ना हो जाए या 4-6 लाख ना हो जाए, तो इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं कि कितना है वो इंश्योरेंस, कितने का आ सकता है वो इंश्योरेंस। तो क्या करेंगे हम लोग कि बिल्कुल नहीं चाहते कि मार्केट के गिरने से कोई भी नुकसान हो हमें, तो हम एक इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। और ये इंश्योरेंस आ रहा है अभी मार्केट में 3 महीने का इंश्योरेंस, कि इस 3 महीने में, अभी मई शुरू हुआ है, जून, 2 महीने का इंश्योरेंस। इस 2 महीने में मार्केट चाहे 30% गिर जाए, 40% गिर जाए, मेरा 10 लाख 10 लाख ही रहे। ये उम्मीद के साथ एक इंश्योरेंस अगर मैं खरीदना चाहूं, तो मार्केट मुझे वो इंश्योरेंस देता है। 1-8% का ऊपर नीचे चलेगा मुझे, कि ठीक है,
1% नीचे तक आ गया, मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो 10-1 हजार से चला जाए नीचे तो ओके है, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट बहुत ऊपर सही में जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट पंडित्स के उसके हिसाब से आए और 20% की रैली मार दे, तो 10 लाख का मेरा 12 लाख हो जाएगा। तो 5-10 हजार 20 हजार रुपये लूज करने को, लूज करना नहीं बोलते इस मार्केट में, वो तो फ्लक्चुएशन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक इंश्योरेंस मुझे मिल जाता है जिसकी कीमत है, वैसे तो जून के स्टार्टिंग में ही है ये रिजल्ट, राइट। तो लेकिन जून के आखिरी तक इंश्योर करेगा कि ये सेफ रहे। अगर मान लेते हैं, राइट, क्या मान लेते हैं कि मार्केट की इलेक्शन रिजल्ट 4 जून को ना आकर के 29 मई को आ जाता, ठीक है, उसके हिसाब से लेके चलते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल को डिस्टॉर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिल्कुल महीने के स्टार्ट में ही आ रहा है, तो थोड़ा सा ना इंश्योरेंस का प्राइसिंग देख करके आप डर ना जाओ, इसलिए बस एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। अदरवाइज सब कुछ रियल लाइफ से लिया है ताकि आप इसकी उपयोगिता बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो मई के महीने में ही इलेक्शन के रिजल्ट अगर आ जाते हैं तो मैं जो इंश्योरेंस खरीद रहा हूं मेरे 10 लाख के पोर्टफोलियो को बचाने के लिए, वो मिलता है मुझे आज 160 रुपए में। कल तो ये 130 रुपए में ही मिल रहा था, आज 160 में मिल रहा है, 160 रुपीज में। ठीक है, तो नहीं, नॉट एग्जैक्टली 160 रुपीज, 160 इंटू 50 विच इज 8 हजार रुपये। तो अगर मैं ये इंश्योरेंस एक खरीद लेता हूं 8 हजार का, जिसे हम बोल रहे हैं निफ्टी 22,000 में पुट, ऑप्शन आ गया यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था कि हमें ऑप्शन भी समझना है, राइट, कि क्या है उसकी उपयोगिता। तो ज्यादा थियरी बताने की जगह सीधे सीधे उसका एक यूज केस बताना शुरू कर दिया है मैंने, आप राइट। तो इंश्योरेंस खरीदा 8 हजार रुपए का, और इस इंश्योरेंस का नाम है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस होता है, राइट, हाउस इंश्योरेंस होता है, दुकानों में फायर इंश्योरेंस होता है, वैसे एक इंश्योरेंस है जिसका नाम है निफ्टी 22,000 में पुट, और कीमत है इसकी करीब 8 हजार रुपये। ये खरीदते ही क्या होगा कि अगर आज निफ्टी 22,300 पे है, तो और इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं और बुरा आता है, और मार्केट अगर यहां से 30% का एक हेल्दी करेक्शन करती है, तो मेरा 3 लाख का लॉस होने वाला। वो वैल्यू मेरे पोर्टफोलियो की जरूर 7 लाख रहेगी, मगर अगर ऐसा होता है तो ये जो इंश्योरेंस खरीदा है ना, इस इंश्योरेंस के बदले कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ये मिलेगा, इसकी जो वैल्यू है अभी 160 रुपए, चूंकि ये पुट 160 का था, 50 के लॉट में था, इसलिए 16 × 85 8 हजार रुपये लिखा। तो यहाँ पे ये होगा कि 22,300 से 15,610 जो ये गई है, तो इसी की प्राइस 160 रुपए से बढ़ करके हो जाएगी। मैथ क्या है इसके पीछे का, ऑब्वियसली जब पुट ऑप्शन सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो जिन्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो कहानी की तरह सुने, जिन्हें समझ में आ रहा है नंबर्स वो समझ लें, अच्छी बात है, क्योंकि ये तो पूरा आज का क्लास डेडिकेटेड है कहानियों की ओर। कहानी के माध्यम से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि ऐसा ऐसा कहानी है ना, मेरे दिमाग का फितूर ही है, मार्केट गिर जाएगा ऐसा थोड़ी होता है, क्यों? तो तो हमारा ये जो 160 रुपए की चीज है, जो 50 के क्वांटिटी में मिली है, इसकी प्राइस चली जाएगी 6,390। एक ऐसी चीज जो 160 की थी चली गई 6,390, जो आपने बाई की थी, इंश्योरेंस बाई करते हैं,
आपने बाई किया था, तो 50 के लॉट में किया था, तो क्या कर रहा हूं मैं, ये फिर सेल करेंगे इतने में, 160 का जब 6390 चला गया, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, तो उतने में बेच देंगे। कितनी क्वांटिटी बेचेंगे, 50 लिया है 50 बेचेंगे। ये हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस। ठीक है, जिनको ठीक नहीं है उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन जब सिखाएंगे तो बताएंगे कि क्यों इसका प्राइस इतना चला जाएगा। अभी आप इतना यकीन रखिए मुझ पे कि झूठ क्यों बोलूंगा मैं, क्या मिलने वाला है मुझे। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जब मार्केट गलत इलेक्शन रिजल्ट, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के कारण 30% का क्रैश देता है, तो ये मेरा खरीदा हुआ इंश्योरेंस का प्राइस बढ़ जाएगा, और जो बढ़ेगा वो प्राइस होगा 6390, और ये होगा मेरा प्रॉफिट। तो भले मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 7 लाख रह गई, ये मेरा एक अलग से प्रॉफिट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, भाई मुझे 10 लाख रुपए चाहिए थे, अब अगर उस समय 10 लाख रुपए ही चाहिए तो 7 लाख में ही बेच दूंगा, इसको क्या फर्क पड़ता है। और 3 लाख तो इधर हैं ही पड़े हुए उसी अकाउंट में। तो फिर से मैं तो 10 के 10 लाख पे रह गया, इंश्योरेंस अपना काम कर गया। और ये इंश्योरेंस का नाम था पुट ऑप्शन। ऐसे ही कॉल ऑप्शन भी एक इंश्योरेंस, इसी के लिए बनाया गया है इन्हें, ये एक्चुअली में इंश्योरेंस है। तो फिर आपको लग रहा होगा कि इंश्योरेंस है तो मैं ट्रेड कैसे करूंगा इससे। बिल्कुल ट्रेड करेंगे, इंश्योरेंस भी तो कोई बनाने वाला है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बनाती है, हम खरीदते हैं। आपके केस में जब आप ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप वन मैन इंश्योरेंस कंपनी बन जाओगे, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, उसके प्राइसिंग समझ में आती है, ये कितनी बार होगा, ये तो 5 साल में एक बार रिजल्ट आया है, आने वाला है, इलेक्शन का सिचुएशन बना हुआ है, ठीक है, वन ऑफ द केस है। हमेशा थोड़ी ऐसे होगा कि 160 रुपए की चीज 64 रुपए चली जाएगी, 6400 चली जाएगी। एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको कि इवन इन द एक्सट्रीम केस सिनेरियो, दीज कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन कैन गिव यू एब्सोल्युटली, क्या बोलूं मैं आपको, एब्सोल्युटली फियर फ्री पोर्टफोलियो होल्डिंग करने का जो आपका है, वो सेंस आपको देगा। बहुत बड़ी चीज है, राइट? तो इसीलिए बनाया था इसे। यही है ऑप्शन, और कुछ नहीं है। वो आप बोलेंगे कि ऑप्शन है एक इंश्योरेंस, और हमें इंश्योरेंस समझना है, बिल्कुल समझना है। कितना मुश्किल है इंश्योरेंस समझना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 40 साल उम्र है मेरी, अभी जस्ट हुआ हूं 40 का, राइट? अब 40 साल वाले 1 लाख लोगों में से कितने लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई? 1 लाख लोगों में लेट्स से 10 लोगों की हुई पिछले साल, पिछले 10 साल। 10 कम तो नहीं बोल दिए, 100 लोगों की हुई। ठीक है, 100 लोग इस उम्र में किसी न किसी दुर्घटना या किसी चीज में लेट से गुजर जाते हैं जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया। तो 100 लोगों को कितना देना है मुझे, सबने 1-1 करोड़ का लिया है, तो 100 करोड़ देना है। दो दो चार, 100, 100 हो गए करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, 100 करोड़ देना है मुझे एज ए इंश्योरेंस कंपनी। किससे लूंगा, कहां से आएगा ये 100 करोड़? सिर्फ यही 100 करोड़ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 8, 10 करोड़ का तो मेरा सैलरी, मार्केटिंग एक्सपेंस, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, फलाना ढिंगाना भी गया, ये भी चला गया, ओके फाइन। और 10 करोड़ खर्च हुए, नहीं, और 10 करोड़ प्रॉफिट भी कमाना है, इंश्योरेंस कंपनी चला रहा हूँ, मुफ्त में थोड़ी करूंगा। तो 120 करोड़ देने हैं मुझे, 120 करोड़ देने पड़ेंगे मुझे, करेक्ट? तो अब एक इंश्योरेंस कितने का बेचूं मैं, तो इतने का बेचूं, दिस
डिवाइडेड बाय दिस, 12,000 रुपये का। मेरे से 16,000 लिया है इन लोगों ने। मतलब कुछ ज्यादा लोग मर रहे होंगे, या तो प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हैं, कमीशन ज्यादा होगा, या ये नंबर गलत ले लिया मैंने। बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं मैं कि हर जगह पे मैथ है। अगर हिस्टोरिकल डेटा है, फैक्टर्स पता हैं, तो प्राइसिंग कर पाओगे आप इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस की प्राइसिंग आप समझ पाते हो। 12,000 सस्ता लगता है तो उस समय खरीद लेंगे, 20,000 महंगा लगता है शॉर्ट सेल कर देंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। कुछ इंश्योरेंस जो महंगे दिख रहे हैं उन्हें बेचेंगे, उनको बचाने के लिए कुछ इंश्योरेंस सस्ते दिख रहे हैं तो उन्हें खरीद लेंगे। इसी तरीके के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताते जाएंगे। और इंश्योरेंस को प्राइस करना तो बहुत मुश्किल है। जो लोग इंश्योरेंस कंपनीज में इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्चुरियल साइंस पढ़ के आते हैं। वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइंस है ऑप्शन ट्रेडिंग से। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आपको 3 महान भावों ने प्राइसिंग के फॉर्मूले दे दिए इंट्यूटिवली, 4 ग्रीक्स दे दिए, 2 तो बड़े काम के हैं, 5 दे दिए, फेमस 4 हुए इनमें से। और ये आपकी पूरे लाइफ को सिंप्लीफाई कर देता है। बस आपको सीख लेना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि आपके सारे ऑप्शंस किस तरीके से डांस कर रहे हैं आपस में, कैसे कौन किसको खींच रहा है, कौन किसको बढ़ा रहा है। और जब वो इमेजिन करना आप शुरू कर लेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं करें। ये 3 कीवर्ड समझाने में मैंने पूरा क्लास निकाल दिया, बहुत गलत बात है। बट एनीवे, जो भी है, बात समझ में आ गई आप लोगों को क्या करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग मेंटरशिप में? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बहुत सारा, ठीक है? कल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, आई होप आप सबको ऐड कर लिया गया है जो भी लोग आए हैं। अलग अलग, ये देखिए, थीटा आर्बिट्राज, मतलब अभी ये शुरू होगा। डेल्टा न्यूट्रल, डेल्टा एक ग्रीक से, सिर्फ उसको पढ़ा के उसके बेस पे स्ट्रैटेजी बना के प्रैक्टिस करा करा के उनको बैक टेस्ट करके कि कितना रिटर्न उनमें आता है, आप सीखते चले जाएंगे। कुछ उसमें हुआ है। इसके पहले जो थीटा वाला था वो एक्चुअली में हम लोगों ने व्हाट्सएप पे किया था। व्हाट्सएप वाला ग्रुप कहाँ गया? इस पे हम लोग बाद में आए, पहले 2-3 महीने हम लोगों ने व्हाट्सएप पे किया था। नंबर वगैरह लीक हो रहे थे, कंप्लेन्स आ रहे थे, फिर इधर आ गए हम लोग। हाँ, क्लास कब से शुरू होगी रोहित? ये क्लास चल रहा था, क्लास 1 था ये। कुछ भी नहीं सीखने को मिला आज आप लोगों को? हम्म। आज की क्लास, वो क्लास नहीं लगी? ऑलराइट, आज की क्लास थी। और अब इसमें जो बताना है मुझे आप लोगों को वो बस ये कि भाई देखो, फाइनेंशियल मार्केट भी किसी न किसी चीज़ के लिए, फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक बनाए, इंश्योरेंस बनाए, इंश्योरेंस कंपनीज बनाई हम लोगों ने, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अ, तो स्टॉक मार्केट भी बना है, तो इसी फाइनेंशियल मार्केट के बड़े से इसमें एक हिस्सा है कैपिटल मार्केट का, यानी स्टॉक मार्केट का। और उसी स्टॉक मार्केट के अंदर ये है हमारा डेरिवेटिव मार्केट, जो हम इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्रोडक्ट का या कैपिटल मार्केट के प्रोडक्ट का बता सकते हैं। ठीक है? तो अभी कल से यानी अगले क्लास से आपको क्या क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ। तो अब हफ्ते में 2 क्लास है आपकी। पहला क्लास इसी के ऊपर था कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि ऑप्शन क्या होता है, उसका यूज क्या है, और थोड़ा आपको मेंटर कर सकूं कि सही डायरेक्शन क्या है इस प्रोग्राम में आगे जाने का। तो आप सबको ये पैकेज मिला हुआ है। इस पैकेज के अंदर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में,
और इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में, प्लीज ये क्लासेस देखना शुरू कर दें। द मोर जितना आप यह देख के आएंगे, अगले मंडे को आपकी क्लासेस होंगी, मंडे ट्यूसडे फिर से अगले वीक में क्लासेस होंगी। ये आप समझिए कि पूरा मॉड्यूल 1 आप देखें भी वीडियोस, क्विजेस भी करें, और कहीं पे भी डाउट हो, मैं हूं, मेरे को इंस्ट्रक्टर माइनक है, आप सीधे सीधे व्हाट्सएप करके पूछें। आप चाहें तो यहाँ पे डाल करके पूछें, राइट, इस जनरल वाले में कि मुझे ये क्विज करने में मदद चाहिए। मैं क्लासेस लूंगा अगले मंडे ट्यूसडे को, बट इन बिटवीन मेरे को इंस्ट्रक्टर मोइनक, जब आप लोग बोलेंगे 30 मिनट्स का, 45 मिनट्स का एक डाउट सेशन अलग से ले लिया करेंगे अगले 5 दिन तक। मोइनक, आर यू देयर इन द क्लास? Hi, sir. Hi, hi. So Moinak, your responsibility is that have a doubt session every day for next 5 days for Okay, sir. all the freshers. Okay. Mhm. Make them comfortable with call option, put option. Obviously, मैं वो scratch से पढ़ाऊंगा मंडे ट्यूसडे को, बट जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं जो एक्सरसाइजेस कराना चाहता हूँ, जो उनका यूजफुलनेस दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा होगा अगर वो थोड़ा कॉल पुट के वीडियोस देखें, जो लोग देखना चाहें। जो लोग नहीं देखना चाहें ऑब्वियसली उनको मैं पढ़ाने वाला हूँ, बट जो एंथुजियास्टिक हैं उनके लिए आप एक डाउट सेशन रोज का ले, और लिंक यहाँ पे पोस्ट कर दें। कितने बजे लेंगे वो थोड़ा आप टाइम एक देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से चूंकि पीछे के बैचेस के क्लासेस हमें लेने हैं 8 बजे, और मैं चाहता हूँ उस क्लासेस में आप रहें, तो डाउट सेशन 7 बजे से रख लें। क्लासेस तो मैं ही लूंगा, आप उसमें प्रेजेंट रहिएगा। अगर आपका लंबा चल गया क्लास तो आप मत ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे एक 5 दिन अगले बेसिक्स मॉड्यूल 1 के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो लोग भी वीडियोस देख करके आ रहे हैं और क्विजेस करके आ रहे हैं, कोई भी डाउट हो रहा है उनको, उनको हेल्प कीजिए। दैट इज द प्लान। इज इट ओके फॉर Sure, एवरीवन? sir. देखेंगे आप लोग वीडियो? प्लीज देखिए, जितना आप लोग कोऑपरेट करेंगे उतना तेज भागेंगे हम, राइट? और जितना तेज भागेंगे लर्निंग वाले में, उतना ज्यादा टाइम मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने में, जब हम पेपर ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, स्ट्रैटेजी बिल्ड करने जाएंगे। आराध्य गुप्ता, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, ऑन एन एवरेज आप मान के चलें कि ये पूरा महीना। ठीक है आराध्य, इस महीने के बाद पेपर ट्रेडिंग आप लोगों की शुरू हो जाएगी। बट इफ यू आर इन, आपको लगता है कि आप पहले करना चाहते हैं, तो अभी इसी मेंटरशिप के इस पैकेज में हम लोग पुराने जो क्लासेस हुई हैं ना, उनके वीडियोस भी अपलोड करने का मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे कल या परसों तक। अभी आप लोग ये देखें, आप वो सारे वीडियोस देखें, और अगर आप डिस्कॉर्ड में हैं और इन लोगों के साथ डेल्टा और थीटा के ऊपर पेपर ट्रेड करना चाहें, और करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आज मैंने जूम पे भेजा था डिस्कॉर्ड का लिंक। जो भी लोग मोइनक, एक बार आपका नंबर आप एक बार चेक कर करके डाल दोगे लोगों का, मोइनक, जो लोग अभी तक बोल रहे हैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है। आज की क्लासेस आप में से जो लोग एडेड नहीं हैं, वो आप मोइनक को मैसेज कर दीजिए इस नंबर पे। एक बार आप इसका फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और
आपको मोइनक डिस्कॉर्ड में ऐड कर देंगे। इसीलिए पहले 2 क्लासेस का जूम लिंक दिया गया आपको, ठीक है। दूसरा, आगे से जो क्लासेस हैं वो, ये आपका जो पैकेज है इसमें जो ये तीसरा वाला बिल्डर बना हुआ है, इसके अंदर की लाइव क्लासेस से शुरू होंगी, ठीक है। ये 14 क्लासेस ये आज का था। कल अगले मंडे से हम डेरिवेटिव मार्केट का उसके ऊपर करेंगे। ये मई बैच का है, लाइव क्लास 1, लाइव क्लास 2, ठीक है। तो लाइव क्लास 3 आपको इसके अंदर आकर के यहाँ से मिलेगा। 2 दिन मैंने जूम पे भेज दिया, आगे से आप खुद ध्यान रखेंगे कि यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे। पुराने बैच के जितने भी लोग हैं, आप सब अपने उसमें जाके देखेंगे, आपको दिखेगा कि ये मई वाला भी आपको असाइन कर दिया गया है। तभी सारे मिला करके पैकेज में अब 600 लोग आए हैं, क्योंकि मई में मुश्किल से 40-50 लोग हैं। बाकी सब आप पुराने ही हो, मैंने सबको असाइन कर दिया है। जो भी रिपीट करना चाहें दोबारा, क्योंकि कुछ इंप्रूवमेंट होते रहती है, आपको रिपीट करने का मन है, यू आर मोर देन वेलकम। दैट इज ऑल फ्रॉम टुडे। इट्स एग्जैक्टली 9:27 एंड आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। थैंक यू। हर हफ्ते 2 क्लासेस होगी गंगाराम। मोइनक का नंबर आप सबके पास कुछ नहीं तो ये तो है ही ना, कुंदन किशोर की जो वेब या तो आपने जिससे भी प्रोग्राम खरीदा है, किसी न किसी मेरे टीम मेंबर में 3-4 लोग हैं, उनसे खरीदा होगा, तो उनसे, या कॉन्टैक्टर्स पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जो चैट आएगा वहां पे भी आप डाल दीजिएगा, तो आपको कर दिया जाएगा ऐड। हमारे हिसाब से तो सबको ऐड कर दिया गया है, बट 2-3 लोग अगर रुके हुए हैं तो अलग बात है, ठीक है। शीतल, आज कल तक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप कुछ वैसा मिस नहीं कर रही हैं वहां पे। टू यू ऑल्सो सचिन। मोइनक का नंबर है, नहीं तो कॉन्टैक्टर्स पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, हो जाएगा। ये आप वही लोग हो जिनको मैंने कॉल करके बेचा है शायद, क्योंकि मेरी टीम काफी डिसिप्लिन्ड है, मैं ही सबसे इनडिसिप्लिन्ड हूँ। ओके आनंद, हो जाएगा। आपको माइनक का नंबर दिया था ना, एक बार पहले मैं यार थोड़ा ये रिकॉर्डिंग बंद करूँ।